जाएगा, एक बार सोच कर देखिए, that family will fall apart. और वो परिवार बिखर जाएगा। But if you see the vision, Jesus Christ अगर वो himself, दर्शन यीशु मसीह है, then that family will grow. और वो परिवार बढ़ेगा, It will be nurtured. वो ऐसे आपकी कलीसिया की समानता में And रहेगा, they will not fall और वो apart. कभी नहीं गिरेगा। That is what the church is. वही कलीसिया भी है, It is a family. वो एक परिवार है, It is a community of believers. एक समाज है विश्वासियों का। We don't expect people to be individual Christians. हम ये नहीं चाहेंगे हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग कलीसिया बनाए। We expect people to be individuals within a family, a community of हम believers. ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक समूह में आए और मिलकर रहे। And so there are some who are those who plant, वो उसीलिए कई हैं ऐसे लोग जो स्थापित करते हैं, and there are some who are those who water the plant. और उस स्थापन को पानी डालते हैं, But it is God who gives the growth. और वो मसीह है जो उसको झाड़ को बढ़ाता है, So that's what the church is. और वही कलीसिया भी है। The church is not something that is stagnant. कलीसिया एक ऐसी चीज है जो साधारणता से बनाई है। A building can be stagnant. एक बिल्डिंग एक साधारण हो सकती है, But the church that is growing inside that लेकिन building उसके अंदर की कलीसिया जो बढ़ रही है, is pushing out against the wall. वो अपने आप को एक दीवारों को बढ़ा रही है, They say we're growing, क्योंकि मुझे बढ़ना है, not only in numbers, सिर्फ संख्या में नहीं, but they're growing in faith. विश्वास में बढ़ना है, They're growing in strength. शक्ति में बढ़ना है, They're growing in love that's shown in the community. परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है समाज के साथ में। And so it's pushing out against the वो wall. उस दीवार को बढ़ा रहा था कि वो फैल जाए। And the walls can't contain it. But it's not just in the gatherings ये like सिर्फ this, समूह नहीं है छोटी सी, but it's in the good works you do. ये in the अच्छे community. कार्य अच्छे काम है जो आप लोगों ने 5 वर्षों में Because किया है। not everything is contained within here, वो अंदर ही नहीं है, but it's what you do in the community. वो अंदर से आप बाहर निकल जो आप कार्य करते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। It's the love of Christ that you show out here. जो मसीह का प्रेम आपने प्राप्त किया और लोगों के साथ में जो बांटा है। I used to see some signs on American churches that would say this. मैं अमेरिका में कलीसिया में कुछ सिंबल को देखता हूँ, It says you come inside to worship, वो आप अंदर आराधना के लिए आ जाओ, but you go outside to serve. लेकिन बाहर जब सेवकाई करने के लिए। And so the church is expanding and pushing against the walls to serve outside कलीसिया को बढ़ना है ताकि बाहर जाकर सेवकाई कर सके, and to love all of those outside. जो बाहर है उनसे प्रेम कर सके। In our church at Woodmont Hills, हम 3 बातें करते हैं, we love God, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, we love each other, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, and we love the world. और हम समाज से प्रेम करते हैं। Not we love the things of the world, जो समाज में उस चीजों से प्रेम नहीं we करते love हैं, the people of the world. समाज में जो व्यक्ति है लोग हैं उनसे हम प्रेम And करते so हैं। we're not going to stay inside the church हम अंदर building. कलीसिया के अंदर ही रहना नहीं चाहते, We're going to go out into the हमें world बाहर and जाकर serve. समाज में जाकर सेवकाई करना है। So I can see this building expanding मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिल्डिंग बढ़ रहा है, as you grow in number जैसे आप संख्या में बढ़ रहे हैं, and as you grow in the spirit of Jesus जो Christ. परमेश्वर की आत्मा में आप लोग बढ़ रहे हैं, This building will be expanding. ये कलीसिया भी बढ़ना है। You might have to build a balcony like they did in Versova. जैसे वर्षों में बालकनी हो सकते हैं कि आने वाले समय में आपको भी बालकनी बनाना पड़े, But that won't be enough. लेकिन वो बालकनी काफी नहीं है। You're going to have to put the stage in front of the doors so people can sit here. और हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इसके दरवाजे के सामने आपको एक स्टेज डालना पड़े ताकि लोग यहाँ पर बैठ सके। You're going to have to meet 2 or 3 times. आपको हो सकता है कि 2 से 3 आराधना को यहाँ पर चलानी It's going to पड़े। keep on growing. आपको बढ़ना है, That's what Jesus wants. यही यीशु चाहता है। हालेलुया। With each of you being planters or waterers, आप हर एक व्यक्ति पौधे को नाटना है and you depend upon our Father in heaven और उसे to build the house. और उसे पानी डालना है, उसे बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति मसीह पर निर्भर होना है ताकि वो आपके हृदय के साथ साथ आपकी कलीसिया को बढ़ाए। In Hebrews chapter 3, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में अगर हम देखें, it's talking about the difference between Jesus and Moses. यीशु और मसीह के मूसा के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। I'm not going to go into great detail मैं there, आपके इसके गहराई में नहीं जाऊंगा। but it says that Moses was a servant in God's house, मूसा परमेश्वर के घर में एक सेवक था, but that Jesus was the son over the house. लेकिन यीशु उस घर में रहने वाला परमेश्वर का पुत्र था। And so you see the illustrations that's given about Jesus. यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में उल्लेख देखेंगे तो
In 1 Corinthians 3, it कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय में says that he's the foundation. वो है मूल स्तंभ है यीशु। But in Hebrews 3, it says he's the son over the house. और इब्रानी में कहा है कि तो घर में परमेश्वर का पुत्र है वो। And in 1 Peter chapter 2, अगर पत्रस की पत्री 2 अध्याय में अगर हम it देखें, says that he's the cornerstone of और the वो house. है घर का किनारे का पत्थर है कहता है। In many places it says he's the gateway into the house. और कई जगह पर हम देखें तो वो द्वार है कहता है जिसमें हम प्रवेश कर सके। He's the door. वो है दरवाजा, द्वार है। And so you see what it's saying. वहाँ पर क्या बताया गया है? It says that Jesus is everything for us. यीशु सभी चीजों में हमारे साथ है। He's the foundation. वो है पुनाद है, He's the door. वो दरवाजा He's है, the वो cornerstone. कोने का पत्थर है, The son over the वो whole house. परमेश्वर का पुत्र है। And so without Jesus we have no यीशु के house. बगैर हमारा घर कुछ नहीं है। If you keep your eyes on him, अगर हमारी दृष्टि अगर उसकी ओर रखे, keep your thoughts on him, अगर हमारा दर्शन उसकी ओर अगर हम रखे, then this house will grow. तब वो घर बढ़ेगा। Then this will be the house that you have forever and ever. और तब वो घर सदा और सदा के लिए रहेगा। I'm not talking about this building. हम ये बिल्डिंग के बारे में नहीं कह रहे हैं। I'm talking about the house which is the church belonging to Christ. मैं उस कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ जो मसीह ने बनाया है। But Jesus must be the center. लेकिन उस घर में यीशु को प्रथम स्थान देना है। The people of faith. हमारे बीच में से कई विश्वासी हैं जो हमें छोड़कर गए हैं And they are witnesses to us. और वो हमारे लिए गवाही है। And we ought to pay attention to them. हमें उसके और ध्यान देना है। We ought to pay attention to Abraham हम अब्राहम के बारे में दर्शन देना है, and Moses मूसा के बारे में हमें ध्यान देना है, and David दाऊद के बारे में ध्यान देना है, and some of the women like Rahab. रेहाब के बारे में हमें ध्यान। इन सभी से बढ़कर Says our focus, our eyes should be fixed on Jesus. और इन सभी से बढ़कर हमारा दर्शन या हमारा लक्ष्य सिर्फ यीशु की ओर होना चाहिए। Because not only is he the one who has died for us, वही एक है जो मेरे लिए हमारे लिए मरा गया। he is the author of our faith. वो हमारा उद्धार करता है, He is the perfecter of our वो faith. हमारे उद्धार के मार्ग में चलाने वाला है। And it goes on to say how that is. और हम कहते जाएंगे ऐसे बहुत से हैं। It says that for the joy set before him, he endured the cross. और आने वाली खुशियों के बारे में उन्होंने अपने आप को समर्पण किया है। So I like that thought. और वो शब्द को मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। We all have to face crosses. हमें क्रूस को भार धारण करना है। But let me be quiet for a moment here. मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए शांत होना चाहूँगा। Our good brother PD and his wife Ruth Mary हमारे दैवजन पीढ़ी और उनकी पत्नी रुथ मेरी जी, and his son Tinku, उनका बेटा टिंकू रैंडॉल्फ,